नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग ब्रिज। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। हमारे साथ हैं इरशाद अंसारी, जो कि एक सीए फाइनलिस्ट हैं और अभी अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं यूएई से, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट से। आर्टिकलशिप उन्होंने कैसे फाइंड करी यूएई में और उनकी क्या जर्नी रही है अभी तक, ये सारी चीज़ें हम इस कॉन्वर्जेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एंड बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हमें भी बाहर से अपनी आर्टिकलशिप करनी है। सो इरशाद सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज देने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू द शो इरशाद, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Hello Pooja, thank you for calling me for this podcast. Actually, the whole week I was very busy with that stock count and the calendar end is 31st December, the financial is calendar end year. So I was busy because the client is starting their audit because they closed their book in 31st December 2025. So हाँ। I was busy with that. But anyhow, यस, फाइनली वी हैव fortunately, टेकन आउट टाइम। yeah, so I'm good. पहले शुरुआत करते हैं आपकी सीए जर्नी की। आपने सीए जर्नी कब स्टार्ट करी? और थोड़ा सा आप उसके बारे में हमें बैकग्राउंड दे पाए तो सो दैट ऑडियंस कैन रिलेट विद यू। Actually, so I am from Uttar Pradesh. हम्म। In Uttar Pradesh, there is one district known as Azamgarh. So I am आजमगढ़। from there. Yeah. हम्म। So after 12th, like I never decided to do CA. CA was never in my plan. अच्छा। So I went for BCom. Then I enrolled myself in there is one university known as Purvanchal University in Jaunpur. Most of you all know. हाँ। So I enrolled there and I wasted 3 years for doing BCom only. And I never visited college even once for a class. I just show up for the exam only. So anyhow, I cleared BCom. Then I was planning to do MBA after BCom. So I gave my entrance exam to Lucknow University and I qualified that MBA exam for that entrance exam. So, but there is two rounds. That is one is written and one is interview. So in written, my marks was good, but in interview, I don't know for what reason they just give me I think 13 marks out of 30, ओके। 1 3. हम्म। So because of that, I shifted to lower rank and I wanted to do the MBA in finance department. हम्म। But but because of my low marks, they were offering me that HR department, and I don't feel like doing that. So I just denied to do it. So हम्म। I just went back to home. Then again we stayed 6 months. Then one day my elder brother called me that why don't you go to the Lucknow and there is one CA firm. Just prepare for the CAT and in meanwhile do the some training in CFM. You will learn something. So I went to Lucknow. I joined one firm known as Mittal Agarwal and Associate, Chandan हम्म। sir. Chandan sir was our principal. हम्म। So I was there and sir took my interview. Sir asked me, can you name the three types of account? So I thought I gave him some rubbish answer. He were asking me about three types of account, that golden rule of accounting हाँ हाँ। that we have in 11th or 12th. राइट। But I said, sir, it's current account or saving account. I thought it's a bank account. हम्म। So the second question he asked, tell me the journal entry for the inventory lost by fire. And I हम्म। couldn't tell. Then sir said, straight away said to my face that I don't know what you studied in the college, but you don't know us it. हम्म। Then I don't know why. Still, he gave me a chance that I think you can do it. Like you can prove yourself. Then after 3 months, I got placed in that firm for internship without doing CA because he is so kind. I believe. हम्म। Then I started going to the office, and after 3 or 4 months, like I become a little bit easier with work. Then one day Chandan sir called me that I take a good risk by like taking you in my office. And then from there I got a little bit confidence like yes, I have a potential and I can do CA. हम्म। Then August 2023 I joined CA. I enrolled myself from SSP portal. And in May 2024 I cleared both the first attempt. वाओ, अमेजिंग।
मतलब फ्रॉम कि बीकॉम स्टार्ट करते हैं विद नो क्लैरिटी कि सीए करना नहीं है, देन एमबीए की प्लानिंग कर रहे हैं, देन बेसिक इंटर्नशिप के लिए सीए फर्म ज्वाइनिंग, एंड देन फ्रॉम देयर डिसाइडिंग कि ओके आई कैन डू सीए। आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, क्योंकि यूजुअली लोगों का रहता है कि अच्छा ट्वेल्थ हो गया, ट्वेल्थ इनफैक्ट आजकल तो इतने ऐसे स्टूडेंट्स आ गए हैं जो बोलते हैं कि ना ट्वेल्थ के बोर्ड तो होते रहेंगे, पहले सीए फाउंडेशन का पढ़ लेते हैं। या लाइक या सीए या फाउंड अब वो ट्वेल्थ के बाद आपको इनफ टाइम मिलेगा आपके फाउंडेशन पढ़ने के लिए, 9 मंथ्स का स्टडी पीरियड मिलेगा, 6 मंथ्स होता है आई थिंक। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, बट आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट कि आपने वहां पर उस पॉइंट पे आके, इंटरव्यू पे आके कि अरे मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, आपने हार नहीं मानी, एंड यू स्टिल वेंट ऑन टू टेक दैट रिस्क कि नहीं, मैं मुझे सीखने को मिलेगा। ईगो नहीं रखा आपने कि अरे यार सर के सामने तो ऐसे आई कुड नॉट इवन आंसर वन क्वेश्चन, तो मेरा क्या ही इंप्रेशन गया होगा। बट आपने उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू सो फार। राइट। सो अब चलते हैं आगे, है ना। सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो गया 2024 में, अगस्त 2024 में, बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट। व्हाट आफ्टर दैट, लाइक वहां के बाद आर्टिकलशिप की जर्नी कैसे शुरू करनी है, कैसे आपने डिसाइड करा, तो क्या क्या चीजें आपने करी, उसके बारे में आप पूरा बताइए। एक्चुअली जब मैंने एग्ज़ाम दिया, जब हाँ। मई 2024 में, तो लाइक एग्ज़ाम से पहले तो एक कॉन्फिडेंस था कि निकाल लेंगे, हम्म। बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम बाद मेरा अकाउंट का और एफएम का पेपर बहुत ख़राब चला गया था। तो मैं मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि शायद ग्रुप वन ना हो पाए, हम्म। मतलब एक ही ग्रुप क्लियर हो। तो मैं जब घर वापस गया एग्ज़ाम देकर, तो मुझे लगा कि एक ग्रुप तो उठा लेना चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन मेरा मतलब प्रॉब्लम ये थी कि मेरा ग्रुप वन का अकाउंट खराब गया था और हम्म। ग्रुप टू का एफएम खराब गया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा ग्रुप पढ़ूँ मैं, क्योंकि एक एक पेपर तो दोनों से खराब चला गया है। हम्म। तो इस हिसाब से मैं सोचा ठीक है अभी करेंगे, 1 महीने 2 महीने, 1.5 महीने बाद तक रिजल्ट आ गया था, सॉरी। तो 1 महीने बीत गए, फिर 10 दिन और बीत गए, फिर रिजल्ट आ गया, फिर मैं पास हो गया। फिर मैं कहा चलो बच गए। तो जब मैं पास हुआ तो फिर लाइक मुझे ये लग रहा था कि क्योंकि ऑलरेडी मैं एक स्मॉल साइज फर्म में काम कर चुका था, क्योंकि हम्म। सीए ज्वाइन करने से पहले मैं वहाँ पे काम कर रहा था। तो मैं चाहता था कि कोई मतलब बिग फोर या बिग सिक्स जैसी फर्म अगर मिल जाए इंडिया में। हम्म। तो मैंने ट्राई किया इंडिया में पहले, हम्म। क्योंकि दुबई वॉज माई लास्ट ऑप्शन। हम्म। दिस साउंड विल लिटिल bit strange, but Dubai was my last offer. I don't हाँ। want to come. So first I tried in Big Four. हम्म। I approached 2 3 people who are there doing the articleship in Big Four. So I asked for the reference. हाँ। Some of them didn't reply, and one or two replied. Then they said, "Okay, I will refer," but I didn't receive any further messages from them. हम्म। Then again, there is one friend of mine who was doing articleship in Big Six GT. हम्म। So from there, I also didn't receive any response. हम्म। हम्म। So again, I waited 2 months in India. हम्म। Then because when my result come out on that day, like मेरा रिजल्ट दोपहर को आया था, मेरे भाई ने मुझे शाम को पूछा कि तू भाई आएगा क्या। तो हम्म। मैं बोला नहीं, लेट मी ट्राई इन इंडिया। हम्म। तो तो जब अभी मैंने बिग फोर बिग सिक्स सब में कहीं ट्राई कर लिया, सिर्फ रिप्लाई आ रहे थे वो मिड साइज फर्म से आ रहे थे, स्मॉल साइज फर्म से आ रहे थे, हम्म। और मैं चाहता नहीं था वहाँ पे जाना। तो फिर 2 महीने हो गए, फिर मैं ऐसे लेटा था, दोपहर का टाइम था वो भी। मैं कहा यार बहुत हो गया। तो मैं फिर अपने भाई को टेक्स्ट किया मैं कहा मैं आ रहा हूँ। तो ओके। उसने बोला ठीक है। लेकिन जब मैं बोला मैं आ रहा हूँ, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। ओके। तो तो मेरे भाई को भी पता था, क्योंकि मेरे भाई ने काफ़ी टाइम पहले, मतलब वो 22 या 23 साल की उम्र में दुबई आ गए थे। तो हम्म। उन्होंने जब पासपोर्ट बनवाया था तो देयर वाज़ अ वेरी लाइक इतना प्रोसेस टाइम नहीं होता था, क्योंकि करेक्ट। उसका पासपोर्ट आई थिंक विद इन 1 मंथ ही गॉट द पासपोर्ट। हम्म। तो मुझे तो पता नहीं था, मेरे साथ ही होने, मुझे लगा मुझे भी 1 महीने में पासपोर्ट मिल जाएगा। हम्म। देन आई वेंट टू द साइबर। तो वहाँ से मैंने ऑनलाइन कराया पासपोर्ट। तो अपॉइंटमेंट की इतना मतलब रश चल रहा था कि मुझे अपॉइंटमेंट 15 दिन के बाद मिला। हाँ। तो मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे वो
ये वाला थोड़ा शॉर्ट रखता हूँ क्योंकि लंबी हो जाएगी। तो मैं वहाँ पे गया तो पहले दिन मेरा एक डॉक्यूमेंट में मेरे फादर का नेम थोड़ा सा, वो सरनेम नहीं था मेरे हम्म। आधार कार्ड में। वो सरनेम मेरे मार्कशीट में था, आधार कार्ड में नहीं था, तो उसकी वजह से फिर उसने मुझे 15 दिन दिन के बाद की डेट दी। फिर हम्म। 15 दिन वहाँ डिले हो गया, फिर मैं जब 15 दिन बाद गया तो उनका सर्वर डाउन हो गया। फिर हम्म। 15 दिन बाद की डेट दी, तो 1.5 महीना तो मेरे इधर ही चला गया पासपोर्ट बनवाने। अरे। तो तो हम्म। फाइनली मुझे अक्टूबर लास्ट में पासपोर्ट मिला। हम्म। और फिर मैं लाइक फिर 1 महीना मैं खुद से वेट किया क्योंकि वो राइट टाइम नहीं था दुबई आने का। तो मैं दिसंबर 26 को लैंड किया था रात में। देन आई लैंडेड इन दिसंबर। देन फ्रॉम उसके बाद न्यू ईयर था तो मैं 4 दिन रूम पे ही रहा। फिर न्यू ईयर के बाद मैं फिर देन आई स्टार्टेड हैंडिंग आर्टिकल्स। राइट। सो यूजुअली जो मतलब मैंने पैटर्न देखा है इधर, लोग यहाँ पे इंडिया में बैठ के दुबई में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, बिकॉज दे आर द फर्स्ट वंस जो जाना चाहते हैं। आपके यू हैड द एडवांटेज कि आपके ब्रदर ऑलरेडी वहाँ पे थे, तो आपको एक्सपेंसेस एंड ऑल की वरी नहीं करनी थी, ताकि आप वहाँ पर जाकर ऑन ग्राउंड आप सर्च कर पाए आर्टिकलशिप। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट फैक्टर इन। वो उन्हें लगता है कि यहाँ पे इंडिया में बैठ के अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, मिलती हैं। अब आप वहाँ पहुँच गए हैं, नाउ यू हैव स्टार्टेड, नया साल शुरू हो गया है 2025, यू हैव स्टार्टेड हंटिंग फॉर आर्टिकलशिप। व्हाट हैपेंड, आपने क्या क्राइटेरिया फॉलो करा? क्या आपने कोई लिस्ट बनाई कि मुझे इन फर्म्स को रीच आउट करना है? आप इन पर्सन गए या फिर आपने लिंक्डइन पे रीच आउट किया? पूरी अपनी स्ट्रैटेजी का ब्रेकडाउन दीजिए। तो जनवरी 2 से मैंने स्टार्ट किया था। देन मैंने सारी लिस्ट बनाई, जितने भी ऑडिट फर्म हैं, जितने भी फर्म्स हैं जो हुआ है आर्टिकल्स, लाइक आई थिंक ऑल द फर्म हायर आर्टिकल्स। तो मैंने लिस्ट बनाई। हम्म। वो करीब लिस्ट इज मोर देन 40 फर्म्स। तो हम्म। मैं उसको फिर उसको मैंने फ़िल्टर आउट किया टॉप 10 फर्म्स, हम्म। कैटेगरी कैटेगरी बी। तो हम्म। मैंने फिर उस पहले तो ऑनलाइन अप्लाई किया। 1 हफ्ते तक मैंने ऑनलाइन सीवीज़ भेजी। उसके हम्म। बाद मुझे लगा कि अब मुझे जाना चाहिए बाहर, हम्म। क्योंकि तो फिर मैं एक सबसे पहले जो फर्म में गया था मैं, वो KGRN करके था। आई डोंट हम्म। नो दुबई में कौन सी जगह था, मैं भूल गया था। वो सबसे पहला फर्म था मेरा KGRN। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने डोरबेल बजाई। उसके बाद आई थिंक रिसेप्शन पे कोई नहीं था उस टाइम। तो एक लड़की अंदर जा रही थी। आई थिंक शी वाज आल्सो वन वन ऑफ द आर्टिकल। हम्म। So I asked her like, is anyone there? I'm looking for the articleship. So he went in, sorry, she went in. Then हम्म। she said, कि, ma'am is busy. You can drop your CV. I said, okay, this is my CV. And she said, okay, we will approach you. हम्म। But I haven't received any reply from there. Then again, I visited 3 firms, like हम्म। by myself. Then again, I realized कि like if they want to give you the opportunity, they will give with the mail also, going door to door, because that was also necessary, because if you're not going, then आपको पता कैसे चलेगा कि क्या जरूरी है क्या नहीं। राइट। तो फिर मैं वापस गया। फिर मैं ऑनलाइन ही स्टार्ट करना मतलब शुरू कर दिया सर्च करना। तो आई रिसीव कॉल ऑन आई थिंक 3 जनवरी और 6 जनवरी, मुझे याद नहीं सही से, 3 या 6 जनवरी मुझे कॉल आया था इस फर्म से जहाँ पे अभी मैं काम करता हूँ। हम्म। तो उन्होंने सुबह 10 बजे कॉल किया, बोला कि सर आपने CV सबमिट किया था, ऑनलाइन किया था मैंने सबमिट, हम्म। तो आप आ सकते हो क्या 2 बजे इंटरव्यू के लिए। हम्म। तो मेरे लिए तो बहुत जल्दी था क्योंकि 10 बजे कॉल किया और 2 बजे बुला रहे। हम्म। तो मैंने बोला कि आई एम नॉट इन यूएई, आई एम इन रासल खेमा। रासल खेमा इज अनदर सिटी इन हम्म। यूनाइटेड अरब। सो आई सेड आई एम इन रासल खेमा, आई कांट बी देयर, आई कैन कम टुमारो। क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था पढ़ने का। क्योंकि हम्म। मुझे लगा कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा ऑडिट स्टैंडर्ड बेसिक अकाउंटिंग ये सब पढ़ लूँ। हम्म। क्योंकि पढ़ पढ़ तो मैं वैसे भी रहा था, लेकिन वो फिर एग्जाम भी से कुछ मिनट एक पहले पढ़ने की रिवीजन। जो। हाँ, हाँ। हाँ। तो मैं सोचा कि ठीक है, मिल जाएगा, मतलब टाइम मिल जाएगा थोड़ा। तो फिर तो अच्छा हुआ कि वो मान गई, कही ठीक है तुम कल आ जाओ। हम्म। तो फिर मैं गया, किताब खोला, रात भर पढ़ा। फिर अगले दिन आया, मैंने जो जो पढ़ा था मैं सोचा ये पूछेंगे तो ये तो बता ही दूंगा। हाँ। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अच्छा। उन्होंने उन्होंने मेरी CV देखी। एक तो क्वेश्चन शायद बेसिक क्वेश्चन थे ऑडिट के। हम्म। लेकिन जो मैंने जो सोचा था कि इतना वो नहीं था, बहुत थोड़ा ही था। उन्होंने हम्म। वो बेसिक अकाउंटिंग एंड बेसिक ऑडिट की क्वेश्चन पूछे और मैंने जवाब दिए। उन्होंने बोला ठीक है, वेट फॉर आवर कॉल। मैंने कहा ठीक है।
मैं गया और मुझे पता नहीं था ये वेट इतना लंबा होने वाला है। मैं 4 या 6 को इंटरव्यू दिया था। उनका हम्म। कॉल आता है फॉर द ऑफर लेटर 22 और 24 जनवरी। हम्म। तो इस बीच मैंने 4 इंटरव्यू और दे चुके थे। हम्म। क्योंकि आपको क्योंकि लग रहा मुझे था कि यहाँ से पॉजिटिव नहीं है हाँ, रिस्पॉन्स। हाँ, और रिलाई भी नहीं होना चाहिए एक पे। हाँ, क्योंकि ट्रू। आप तो मैंने इस बीच 3-4 इंटरव्यू दिए। हम्म। वहाँ पे आई थिंक एक इंटरव्यू था जो रिटन भी था। हम्म। रिटन प्लस एक साइकोपैथ टेस्ट होता है, आई डोंट नो, मैंने फर्स्ट टाइम साइकोमेट्रिक। दिया। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। साइकोमेट्रिक या साइकोपैथ कुछ बोला था उसने। हम्म। तो मैंने ठीक है, मैंने वो दिया। तो आई थिंक आउट ऑफ दैट 4 आई रिसीव कॉल फ्रॉम 3। यहाँ से भी कॉल मिला था मुझे ऑफर लेटर का, वहाँ से भी मिला था, बट मैंने ज्वाइन ये किया क्योंकि उनका जब कॉल आया तो मुझे ये फर्म ज्वाइन किए हुए 1 या 2 दिन हो गया था। तो मैं बोला हम्म। अभी क्या उधर जाना। मैं जा सकता था क्योंकि मेरा वीज़ा भी नहीं लगा था। तो हम्म। मैं फिर रिस्क नहीं लिया। मैं कहा नॉट अवेलेबल राइट नाउ। हम्म। ओके। ओके। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप तो इरशाद वहाँ पहुँच गए, आपने फर्म्स को शॉर्टलिस्ट करा, एंड देन फिर आपने फिजिकली अपना रिज्यूमे ड्रॉप किया, ऑनलाइन भी अप्लाई किया। बट लेट्स से मैं इंडिया में हूँ और मुझे दुबई की फर्म में या फिर यूएई की किसी फर्म में अप्लाई करना है। क्या मैं कर सकती हूँ यहाँ बैठ के? कोई भी ये जो स्टूडेंट, बिकॉज ये स्टूडेंट जो सुन रहा होगा वो अभी इंडिया में ही होगा, फिर वो हम्म। प्लान बनाएगा कि मैं पहले दुबई पहुंचूं कि या फिर मैं पहले इंडिया से अप्लाई करूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी हाथ में हो फिर मैं दुबई जाऊं। तो कैसे? अगर मैं ये बोलूँगा, अगर इफ़ यू आर रियली वांटेड टू डू योर आर्टिकल फ्रॉम दुबई, हम्म। तो मेरा ये मानना है कि आपको यहाँ पर विजिट वीज़ा पे आना चाहिए। हम्म। क्योंकि द पर्सन हु इज़ इन इंडिया एंड हम्म। द पर्सन हु इज़ इन दुबई, हम्म। इसमें का ह्यूज डिफरेंस। बिकॉज हेयर, अगर आपको ये लगे कि आर्टिकलशिप जैसी यहाँ पे, पहले तो लोग बोलते थे कि दुबई में आर्टिकलशिप जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम्म। भाई, दुबई में आर्टिकल भरे पड़े। ठीक है, हम्म। इट्स लाइक इंडिया, एवरी चार्टेड अकाउंटेंट फर्म वांट आर्टिकल। हम्म। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स जो पहले दुबई में आए हैं उन एक जैसे दिस इज एम एन आर मैकन, ओके। So they have 10 CV. Out of that 10 CV, 2 person is already in Dubai. हम्म। 1 person is India. So obviously the firm is going to consider the person who is in Dubai because there is much surety, much more करेक्ट। surety. करेक्ट। तो मेरा ये मानना है कि if you want to do the articleship in Dubai, then you should be here. हम्म। And रही बात वहाँ से अप्लाई करने की, that you can also do, but the surety is not that much high. हम्म। क्योंकि फर्म आपके ऊपर रिस्क लेना चाहती है। आप हम्म। आओगे, आपका वीज़ा लगेगा, ये सारा फर्म का खर्चा है। तो फर्म वो रिस्क, जब आप फर्म वो श्योर नहीं होती कि क्या करना चाहिए, कोई सीरियस है, नहीं सीरियस है। क्योंकि मैं मुझे पता है कि कुछ लोग होते हैं जो सीरियस नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि बस आईडी मिल गई तो मुझे अप्लाई करना है। क्योंकि आई सेड वन पोस्ट ऑन लिंक्डइन, द पर्सन हु इज अप्लाइंग देयर, लाइक मैंने कुछ रिप्लाई किया था कि डू हैव अ पासपोर्ट, दे सेड नो। हम्म। एंड आई सेड यू डोंट हैव अ पासपोर्ट इवन अप्लाइंग। तो हम्म। ये दिखाता है कि मतलब, इसलिए मुझे ये पर्सपेक्टिव से मुझे लगा कि शायद फर्म्स को ये नहीं समझ में आता होगा, तो इसलिए नहीं। क्योंकि मेरे जो फर्म में काम कर रहा है, मुझे एक बार लाइक आई वेंट टू द डायरेक्टर सर, ही कॉल्ड मी, इट्स वी आर गोइंग टू हायर सम आर्टिकल्स, हम्म। you have any CV, then give it to me. I said okay sir, and I gave him like 8 CVs. He called me, he called the candidate right there. हम्म। So he called one candidate and he said, sir, my passport is in process, but I have applied for the visa. हम्म। Then सर ने झूठ पकड़ लिया कि you don't have a passport, then how can you apply for the visa? हम्म। And I also got embarrassed because वो, ये आपने रेफर किया था और आपका भी हाँ, इम्प्रेशन खराब होगा, डेफिनेटली, ये तो होता ही देन है। देन अगेन सर कॉल्ड 2-3 मोर आउट ऑफ दैट। एक दो ने तो कॉल नहीं उठाया था, लेकिन एक ने उठाया था, उसका नाम था आई थिंक एस से कुछ नाम था। देन सर सेड ये ठीक है, इसको कंसीडर कर। देन अगेन लाइक वी आर, आई थिंक दे आर गोइंग टू हायर 4 or 5 articles because हम्म। most of our senior article is going to leave because their articleship period is going to complete in Feb, March, April like this. हम्म। तो मुझे लगा कि मुझे अपलोड करना चाहिए, मतलब पोस्ट करना चाहिए लिंक्डइन पे, तो मैंने किया। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतनी सारी सीरीज़ आएँगी। मुझे लगा हम्म। 20, 30 या 50 सीरीज़ आएँगी, बट आई रिसीव मोर देन लाइक 300 प्लस सीरीज़। ओ माय तो गॉड। एक टाइम के बाद तो मैंने देखना ही बंद कर दिया। मैं कहा भाई हम्म। मेरे पास का नहीं है। हम्म। राइट। ओके।
सो एक बड़ा क्वेश्चन और आता है, जो डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे अपन यहाँ पे तो आई थिंक फॉर्म 102 भरते हैं, तो उधर से भी फॉर्म 102 ही रहता है, जो पूरा प्रोसेस है जो आईसीआई के पोर्टल पे हमें, जैसे हमें आईसीआई को उधर फॉर्म भर के भेजना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस है, तो वो इजीली हो जाता है उधर जाके सारा चीज़ें, आपके आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है। सी प्रोसेस सेम है, लेकिन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है यहाँ पे। इन द हम्म। सेंस हमें वहाँ पे 108 फॉर्म भरना पड़ता है, हम्म। जो कि आपका प्रिंसिपल का वो मेंबरशिप आईडी वगैरह डालना पड़ता है, वो हम्म। नंबर जो होता है मेंबरशिप नंबर। हम्म। यहाँ पे क्या है कि यू आर डूइंग आर्टिकलशिप ओवरसीज, तो यहाँ पे हम्म। रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ज़्यादा इन द सेंस आपको फॉर्म 108 में आपको अपना पासपोर्ट, वीज़ा, हम्म। जिस फॉर्म में आप आर्टिकलशिप कर रहे हो उसका ट्रेस, प्लस उस फर्म का जो पार्टनर है लाइक योर प्रिंसिपल, हम्म। जिसके अंडर आप रजिस्टर होने वाले हो, उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। हम्म। ये 4 चीज़ें लगेंगी। ये अपलोड करोगे, फिर दुबई के जो आईसीआई जो है वो हम्म। एक्सेप्ट कर देगी, विद इन वन 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 डे या 2 डे ही आर्टिकल भी रजिस्टर हो जाएगा। ओके। ओके। राइट। अच्छा, आपने वीज़ा की बात करी, तो वीज़ा कौन सा वैलिड रहता है? और टू, बिकॉज अभी आपकी आर्टिकलशिप 2 इयर्स की होगी, उसके बाद ही आप इंडिया वापस आएंगे, एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप एग्ज़ाम भी वहाँ से दे, बिकॉज हमारा जो एग्ज़ाम देने का प्रोसेस दुबई वाले सेंटर पर भी है, राइट? आईसीआई का है, वहाँ पर भी एग्ज़ाम्स दुबई में भी होते हैं। सो वो कैसे रहता है वीज़ा? और क्या एम्प्लॉयर कुछ ऐसा रहता है, बिकॉज जैसे काफ़ी कंट्रीज हम सुनते हैं यूएस वगैरह में एम्प्लॉयर्स जो है स्पॉन्सर करते हैं आपका वीज़ा एक्सेट्रा। सो यहाँ पर कैसे रहता है? एक्चुअली यहाँ पे कुछ फर्म्स हैं जो कि आप आपका खुद का वीज़ा रहता है, दे डोंट स्पॉन्सर द वीज़ा। लाइक इफ यू हैव अ फैमिली वीज़ा देन दे विल प्रेफर यू, बट मैं अभी जहाँ पे काम कर रहा हूँ, दे द कंपनी स्पॉन्सर द वीज़ा, हम्म। so we don't have to do anything. They give you visa for 2 years, क्योंकि दुबई में वीज़ा भी दो साल का ही आता है। हम्म। ओके। हर 2 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यू तो कराना पड़ता हाँ, तो 2 साल का वीज़ा है, और हमारी आर्टिकलशिप पीरियड भी 2 साल की है, तो हम उसके बाद घर जा सकते हैं। अगर हमको इंडिया में एग्ज़ाम देना है तो इंडिया से एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन फीस इज़ क्वाइट हाई है। in हम्म। comparison to India. But still, if you want to continue your job and study also, then I suggest that you give the exam in Dubai, because फिर वो फ्लाइट का खर्चा, फिर आने जाने का, आई थिंक इट विल बी सेम। हम्म। राइट। एंड वीज़ा का जो प्रोसेस है वो मतलब सिंपल होता है? थोड़ा सा आप बता सकते हैं उसके बारे में? लाइक वो फॉर्म के थ्रू ही होता है, या फिर आपको अपने एंड पे, जैसे ये चीज़ तो आपने क्लैरिफाई कर दी कि कई फर्म्स हैं जहाँ पर आपका खुद का वीज़ा होता है, एंड देन देर आर सर्टेन फर्म्स जो आपको वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं, बट दैट यू विल हैव टू फिगर इट आउट, है ना, कि वो कौन सी फर्म है, आपने जितनी भी अप्लाई करी है। तो हम ये इंटरव्यू में सवाल पूछ सकते हैं कि विल दिस फर्म स्पॉन्सर वीज़ा और नॉट? क्या ये इंटरव्यू में ही जी, पूछा जा सकता है ये सवाल? नहीं, बिल्कुल ओके। नहीं। ओके। राइट। और वीज़ा का जो प्रोसेस है, अगर लाइक द कंपनी इज गोइंग टू स्पॉन्सर इट, देन उसके लिए द कंपनी विल प्रोसेस इट फॉर यू, यू डोंट हैव हम्म। टू डू एनीथिंग। द हम्म। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज जस्ट दे विल गिव यू वन अपॉइंटमेंट डेट, you have to show up there for your biometrics. हम्म। If your biometrics is done, then you will receive one ID which is known as Emirates ID. Then done, you are the resident of UAE. ओके। गॉट इट, गॉट इट। राइट। अच्छा, जैसे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स रीच आउट करते हैं, जैसे आपने बताया 300 लोगों का सीवी आपके पास आया फॉर आर्टिकलशिप इन दुबई, एंड बहुत सारे लोगों से आप बात भी करते होंगे। सो व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जो सीए स्टूडेंट्स को है अबाउट डूइंग आर्टिकलशिप इन दुबई? क्या है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन? आई थिंक दे थिंग्स लाइक दुबई में जो आर्टिकलशिप है, वहाँ की जो लाइक द सिलेबस इज डिफरेंट, लाइक what we studied in India and what we are doing in Dubai, it's very different. हम्म। But I want to say like it's same. Whatever you study in accounts, in audit, everything is same in Dubai. हम्म। हम्म। We don't need to apply any extra knowledge in that. The only difference is in tax, हम्म। because राइट। here is VAT applicable. राइट। And after that, they just 1 year or 2 year before, they introduce that corporate tax, which is कॉर्पोरेट nine टैक्स। percent, straight away 9%. Okay, हम्म। there is some exemption also, like for free zone and all. This is a very technical term. We will not go there.
द ओनली डिफरेंस इज दैट, हम्म क्योंकि वहाँ पे लगता है कि लाइक मेनी आई रिसीव मेनी मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट, लाइक दे आर आस्किंग कि अगर हम वहाँ आते हैं तो क्या हम रिलेट कर पाएंगे? हम कहें बिल्कुल रिलेट कर पाओगे भाई। हम सेलेक्ट ही इसी बेसिस पे होते हैं कि आपके पास नॉलेज है या नहीं। तो अगर हम्म हमें दुबई का कोई अलग किताब हो उसके हिसाब से पूछे तो कोई भी आर्टिकल दुबई में नहीं आ पाएगा। राइट। एंड और क्या मतलब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल्स तो सेम ही हैं चाहे आप किसी भी कंट्री में हमने चले जाइए। हाँ, हाँ, टैक्सेशन डायनामिक है क्योंकि टैक्सेशन के रूल्स हर कंट्री के डिफरेंट होते हटा हैं। लिया। हाँ सो वो डेफिनेटली है। एंड कॉर्पोरेट टैक्स, वैट, टैक्सेशन इन ओवरऑल एक डोमेन का काफी स्कोप है दुबई में बिकॉज अब नई अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे काफी ओपन अप हो रही हैं। राइट। थोड़ा सा बात करते हैं लाइफस्टाइल एंड लिविंग कॉस्ट इन दुबई बिकॉज अगर कोई सोच रहा है कि मुझे आना है एंड आर्टिकलशिप करनी है उधर से तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कितना लिविंग कॉस्ट रहता है, कितना जो है क्या कैसा लाइफस्टाइल रहता है उधर का। थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। I think the living cost is like I think the rent is only the major expense here. हम्म अगर मतलब क्योंकि यहाँ पे वो वाला हिसाब नहीं है कि हम फ्लैट ले लें, मतलब लेते भी वो लोग लेकिन वो अलग लोग होते हैं जिनकी सैलरी 10K प्लस होती है, 10K हम्म दिरहम आई थिंक। हम्म तो अपने लिए जो हम जैसे ट्रेनी है आर्टिकल है, आई विल से कि ओनली मेजर एक्सपेंस इज रेंट। लेकिन उसमें भी अगर आप रेंट निकालो द फर्म इज ऑफरिंग यू सफिशिएंट स्टाइपेंड लाइक यू कैन मेंटेन योर कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड एवरीथिंग डेली एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंस यहाँ पे द रेंट इज मिनिमम रेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 700 AED, हम्म 700 to 900, and after the rent you there is a food expense which is 300 to 400, and for the travel I will consider 150 to 200. So हम्म if you compile it up, I think maximum 1500 is enough, हम्म maximum। 1500 So AED तो। AED is enough, more than enough। कूल। अच्छा तो आपने बोला कि आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा उससे आपका काम चल जाएगा। सो क्या रहता है स्टाइपेंड इन दुबई इफ यू कैन गिव अस एन आइडिया फर्स्ट ईयर आर्टिकल्स के लिए, सेकंड ईयर आर्टिकल्स के लिए। Like first year article, I think they will offer 2000 to 2500. Okay, पर between मंथ this एडी। per month. AED. हम्म ओके। And the second year they will offer between 3000 to 3200। 3000 to 3200, राइट। सो अगर हम इंडिया में ट्रांसलेट करें इसको इंडियन रुपीज में, सो 2500 इंटू 25 हुआ 62,500। सो Yes, sir. एंड 3200 इंटू 25 हुआ 80,000। सो थर्टी Yes. टू थाउजेंड से 80,000 तक का स्टाइपेंड का अमाउंट आईएनआर में होगा और ऑब्वियसली दिरहम में होगा। 2500 to 3200 के बीच में रेंज कर सकता है या फिर 2000 to 3200 के हाँ, रेंज के बीच हाँ, में। एंड लाइक यू राइटली मेंशन कि आपका वहां पर जो लिविंग कॉस्ट है वो 1500 तो बकायदा सेविंग ही हो रही है। नहीं 1500 उसमें भी आई इंक्लूडेड एवरीथिंग योर नाइट आउटिंग योर हाँ शॉपिंग एवरीथिंग। हाँ। हाँ, तो तो उसके वही मैं लिए वही लाइक बोल रही हूँ कि अगर आपका 2000 या 2500 का मंथली स्टाइपेंड है तो आप इनफैक्ट उसमें से सेव ही कर लोगे, आपकी सेविंग हो हाँ जाएगी। 500 तो आप बचा लोगे। हाँ राइट। ठीक है। सो एंड देन फिर आप बुक्स वगैरह लाइक आप इंडिया से मतलब अपनी क्योंकि पढ़ाई ऑब्वियसली मैनेज करनी है आर्टिकलशिप के साथ, तो बुक्स वगैरह वहाँ पर कैसे कुरियर हो जाता है इंडिया से अगर आपको कोई ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, फिजिकल क्लासेस का तो आई डोंट नो, आप ही बताएंगे क्या ऑप्शन रहता है वहाँ पे। एक्चुअली आई थिंक आईसीआई की जो बुक्स है, अभी एक मेरा कलीग है साथ उसने मंगाया है इंडिया से। हम्म तो मुझे मेरे हिसाब से शायद बुक्स भी आ सकती हैं आईसीआई की। लेकिन हम्म बहरहाल आईसीआई की बुक से पढ़ता ही कौन है स्टार्टिंग में। जो भी हम्म जिसको भी लेना हो तो ऑनलाइन ऑनलाइन बुक्स ही लेता है जिस फैकल्टी से वो क्लासेस ले रहा है। तो राइट। मैंने बीबी वर्चुअल से क्लास ली है एफआर की, आकाश कम से। तो मैं जब इंडिया में था तभी मैंने क्लास ले ली थी, तो उनकी बुक्स वगैरह मैं लेकर आया हूँ इंडिया हाँ से। अगर अगर नहीं भी आता देर इज ऑप्शन कुरियर, यू हाँ कैन ये सेंड। स्मार्ट मूव किया कि आपने इंडिया में रहते ही
सारी क्लासेस वगैरह ऑर्डर कर ली। और स्पेसिफिकली स्टैटिक सब्जेक्ट्स की तो आप ऑर्डर कर ही सकते हो। जैसे जो हाँ अपने डायनामिक सब्जेक्ट हैं, टैक्सेशन, ये सब चेंज होते रहते हैं, है ना। जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स जो है स्पेसिफिकली हाँ सबसे हाँ। ज़्यादा चेंजेस इन्हीं में ही आते हैं। अकाउंटिंग, मतलब एफआर और एएफएम काफ़ी हद तक स्टैटिक रहते हैं। ऑडिट भी काफ़ी हद तक ऑडिट स्टैटिक ऑल्सो। रहता है, पर उसमें थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स आ जाते हैं जो कि आई थिंक आप यूट्यूब से रेफर करके सिर्फ अमेंडमेंट वेन नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आई थिंक उसमें भी चैलेंज नहीं आएगा। तो एसपीयूएम के एग्जाम्स वगैरह वहां पर सेंटर हैं एसपीयूएम के एग्जाम्स देने के हाँ लिए? या आप ओके। एसपीएम भी यहाँ पे दे सकते हो, द फीस इज ओनली क्वाइट हाई। तो आपने कहाँ से दिया? आपने इधर से इंडिया से ही दिया था आपने? अभी आपने देने या फिर? नहीं, अभी अभी भी मुझे देना, मैं आई विल डू इट फ्रॉम इंडिया। ओके ओके, चलो ठीक है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। जैसे एक तो हमें ये आइडिया लग गया, जो कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन भी था, कि बड़ा ही कुछ अलग काम होता होगा, पता नहीं क्या ही हो जाता होगा दुबई में इन टर्म्स ऑफ आर्टिकलशिप। सो काफ़ी हद तक जो वर्क है वो आपका सेम रहेगा। इट्स जस्ट दैट यू विल बी डूइंग दैट वर्क इन दुबई इन एन इकोनॉमी, इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट इकोनॉमी एंड वर्सेज यू डूइंग इट इन इंडिया। सो हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, राइट। बट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें, तो आपको थोड़ा आइडिया है जो क्वालिफाइड सीएज हैं जो उधर रह के अपनी आर्टिकलशिप करते हैं और वहीं पे सीए क्वालिफाई करते हैं, तो उनके स्टार्टिंग पे पैकेजेस क्या रहते हैं? लाइक अगर आपने दुबई से आर्टिकलशिप की है देन। दुबई से आर्टिकलशिप किया और आपने सीए करा, और सीए बनने के बाद आप वहीं पर ही मतलब जॉब भी करना चाह रहे हैं एज अ सीए, तो उनके क्या कुछ फ्रेशर्स के पे पैकेजेस हैं? कुछ आइडिया है आपको? लाइक डेफिनेटली अगर आप दुबई से आर्टिकलशिप किए हो और उसके बाद आफ्टर क्वालिफाइड द सीए, you are going to do the job in Dubai, you will get a higher salary. You can हम्म। negotiate more. So I think for fresher, with the experience in UAE, you can get 2K, sorry, 12K, more than ट्वेल्व 12K, थाउजेंड एईडी पर मंथ? 80 per ओके month. ओके, राइट। एंड And हम्म। and the CAs who is like coming from India, हाँ। having a experience in India, they can also get 8K to 10K. 8K to 10K एईडी पर मंथ, ओके, राइट। एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स, क्या वहां पर इनफ जॉब्स हैं कि मतलब इंडियंस अब काफी, यू नो ह्यूज अमाउंट में इंडियंस अब माइग्रेट करना चाहते हैं दुबई, वट एवर मे बी द रीजन? हाँ मतलब क्योंकि अभी बहुत सारे इंडियंस को अभी जाना है दुबई, सबको आर्टिकलशिप भी करना है, सीए वाले, सीए जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनको भी जॉब्स करना है। सो आर देयर इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल फ्रॉम इंडिया इन दुबई? एंड Yes, आपको क्या I लगता think है? हम्म। I will say opportunity is more than enough हम्म। दुबई, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन थोड़ी है कि आपको फर्म ही चाहिए, हम्म। कंपनी भी है, इंडस्ट्री भी है, आप कुछ भी ले सकते हो। आई थिंक अगर आप सीए बन गए हो और आप यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द फर्म, तो बेस्ट ऑप्शन इज इंडस्ट्री और कंपनी, क्योंकि हम्म। वो पे भी ज़्यादा करते हैं और जो वर्क प्रेशर होता है ना, वो फर्म के हिसाब से कम, क्योंकि इन फर्म यू आर डीलिंग विद 100+ क्लाइंट। वो जो हम्म। क्योस और हेक्टिक होता जाता है ना शेड्यूल, वो मतलब आई थिंक कंपनी एंड इंडस्ट्री इज मच बेटर देन फर्म। आई थिंक लाइक अगर कोई लाइक दे आर इन डाउट कि मतलब कोई मूव करने से पहले सोचता है कि क्या हुआ दुबई गए हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, क्योंकि वो लाइक जिनका तो कोई यहाँ पे रहता है उनके लिए इजी है, जो फर्स्ट टाइम आएगी उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो आई विल से कि यू शुड डेफिनेटली कम टू दुबई बिकॉज बेटर मनी बेटर ग्रोथ, आई वुड से फ्रेंकली हम्म। स्पीकिंग। राइट। अच्छा, जो ये फर्म्स होती हैं, सीए फर्म्स होती हैं दुबई में, ये इंडियंस ही सेटअप करते हैं कि नेटिव दुबई रेजिडेंट्स जो हैं उधर के ही वो भी सेटअप करते हैं, या फिर आर दी सेटअप बाय इंडियंस ओनली? Like in Dubai, there is a people from every nationalities. So there is a firm who is owned by some other, like some Indian, some Pakistanis also, हम्म। some people from Egypt, हम्म। Lebanese, Sudan. So, but here I would say most of the firm which is like Indian firm, they are owned by Indian only. But ओ। some firms they are owned by some other nationalities. But in that you will find a partner who is from India. हम्म। So in राइट। that tree you can register for article because they are also in partner. So you can register your articles. It doesn't matter who owns that firm. करेक्ट करेक्ट, हाँ मतलब ऑब्वियसली मेक सेंस, क्योंकि
इंडियन सीए होना चाहिए ना, आईसीआई का मेंबर ही तो हम्म। आर्टिकलशिप के लिए करेक्ट। रजिस्ट्रेशन दे सकता है। मेक सेंस, कूल। सो एनी वन थिंग यू विश समवन हैड टोल्ड यू बिफोर यू मूव टू दुबई? कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि हाँ यार ये मुझे काश पहले पता होता? हम्म, मुझे ये लगता है कि काश कोई मुझे ये बताया होता है कि कीप दुबई एज अ फर्स्ट ऑप्शन। डोंट गिव द बिफोर मिक्स इज द फर्स्ट ऑप्शन। बिकॉज अगर मैं यहाँ नहीं आता और मैं जो रिग्रेट होता मुझे आफ्टर क्वालिफाइंग सी, वो नेक्स्ट लेवल होता है। क्योंकि जब मैं आफ्टर क्वालिफिकेशन यहाँ पे आता, हम्म। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इंडिया में रहता, तो मैं जो डिफरेंस पता चलता है ना, डूइंग आर्टिकलशिप इन दुबई, डूइंग आर्टिकलशिप इन इंडिया, फिर वहाँ हम्म। मैं रिग्रेट कर जाता। हम्म। बट समहाउ आई लैंडेड हियर, थैंक गॉड। चलो, अमेजिंग। एनी एडवाइस, लास्ट एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट? I would say just don't mess it up. Like don't, how would say, like we are thinking too much, like the what if you do this, what if you do that. I would say ki just have a passport and take a visa, and just if you really want to do the articleship in Dubai, just move in। हम्म। बिकॉज या ओ। चीज़ें चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। क्योंकि आप अगर इंडिया में रहकर ही हर चीज़ जानने की कोशिश करोगे कि आपका दिमाग फिर ओवर थिंक करेगा क्या ये रिस्क तो हर चीज़ में। मैं भी जब आया तो रिस्क ही था, हो सकता है मुझे नहीं मिलती आर्टिकलशिप, मुझे वापस जाना पड़ता। हम्म। तो रिस्क तो हर चीज़ में ही है। रिस्क तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना बनता ही है इफ यू वांट। हाँ। एंड आई थिंक धीरे धीरे शायद प्रोसेस और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अभी थोड़ा ये टॉपिक उठने लग गया है, धीरे धीरे आई थिंक चीज़ें और सेटल हो जाएंगी तो चीज़ें ज़्यादा, पीपल इन दुबई, दे विल बी मोर एक्सेप्टिंग ऑफ students who are in India but want to do articleship in Dubai. But right now I think बेटर सेंस तो यही है कि आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पर जाकर आप अप्लाई करें, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। बट मुझे एक चीज़ अभी बहुत बुरी लगती है, हमारे लाइक हम जो स्टूडेंट है जो इंडिया से हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आया तो अभी भी मोस्टली जो आर्टिकल्स हैं दे आर फ्रॉम केरला ओनली, साउथ साइड। हम्म। हम्म। जो मेरे भी फॉर्म में सब केरला से हैं। आई एम ओनली वन फ्रॉम द उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। या हम्म। तो मुझे ये चीज़ बुरी लगती है कि अब आज से पहले हम सब तो बिग फोर, बिग सिक्स, बिग फोर यही करते रहते थे। नाउ दे नो दैट देयर इज अ डोर टू दुबई। हम्म। तो अभी उन लोग थोड़ा सा जागना शुरू किए हैं। लेकिन वो केरला वाले दे ओनली एम फॉर दुबई, उनका स्टार्टिंग से ही है। तो मुझे ये लगता है कि हमें यहाँ पे आना चाहिए। क्योंकि एब्सोल्युटली। बिग फोर बिग सिक्स में नाम के लिए जाना और फिर वॉचिंग करते रह जाना, आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन। हम्म। अगेन दूसरी चीज ये भी है ना कि बिग फोर एंड बिग सिक्स, इनफैक्ट बिग टेन, अपॉर्चुनिटीज अब लिमिटेड हैं। अब इतने सारे लोग अगर सी में जाना चाहते हैं तो आपको एक्सपोजर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ब्रांड नेम, अब तो पहले हम ब्रांड नेम बोलते थे, अब हम बोलते हैं एक्सपोजर पे आप जाइए। तो अगर आपको एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है तो शायद एक मिड साइज फर्म जहाँ पर 15-20 पार्टनर हैं जिनके पास अच्छे लिस्टेड कंपनीज के क्लाइंट्स हैं, आई थिंक वहां पर भी आपको बहुत अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बट नथिंग लाइक ऑब्वियसली बाहर जाकर आप दूसरी कंट्री में जाके नहीं नहीं, आपका। हाँ सॉरी हाँ। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। लेकिन दुबई आने का ये मतलब नहीं है कि आप मतलब आपको बेटर, लाइक इफ यू आर वांटेड टू डू समथिंग आफ्टर सीए इन दुबई, देन यू मूव टू दुबई। और आपको प्लान है कि मैं बाहर जाऊंगा आफ्टर क्वालिफिकेशन, आफ्टर हम्म। क्वालिफाइंग द सीए, देन यू शुड कम टू दुबई। लेकिन हम्म। आपका ये प्लान है कि आप प्रैक्टिस करने वाले हो इंडिया में, तो मैं तो बोलूंगा भाई कभी मत आना दुबई। हम्म। क्योंकि फिर आप प्रैक्टिस करने के लायक रह ही नहीं जाओगे अगर दुबई आए। द क्योंकि ओनली आपका। पीपल हु, हाँ, हम्म। करेक्ट। क्योंकि वो जो आपको जो सीखना है, जो प्रैक्टिस में आपको अपने क्लाइंट को देना है, वो इंडिया में ही मिलेगा, आपको हम्म। दुबई में नहीं मिलेगा। हाँ, राइट। लेकिन आपको अगर दुबई में सेटअप करना है अपना फर्म, प्रैक्टिस करनी है, तो दुबई तो आना ही पड़ेगा। जॉब करना है बाहर, तब भी दुबई से गुड ऑप्शन। राइट। 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 Awesome. ठीक है, thank you so much, Irshad. It was a really fun conversation. I think I extracted almost all the information from you, and you were हाँ, very kind. You patiently answered all the questions. So thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and I wish you all the best. And hopefully जब next time हम मिले तो हम सीए इरशाद अंसारी से मिले। या इंशाल्लाह। Thank you so much. Bye bye. Take care. बाय बाय।